A very good morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine. Welcome to reasoning class. So, take out your reasoning book, take out your pencil. Everyone has taken out? Look, now this exercise also we will do in book only. Okay. So, open page number 17, chapter 2, measuring units. Page number 17, chapter 2, measuring units. Write down today's date, 5/1/21. Write down today's date on your book. Okay, so done. Look, and one more thing, this exercise we are going to do in our book itself. Okay, no need to do this exercise in the notebook. So, look, measuring units. What are measuring units? So, first of all, we are going to read. Okay, look, length. How to compare the length of given object? Means हम लोग को जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी लेंथ को किस तरीके से मेजर करेंगे. ओके, look, if objects are straight, then measure them by ruler or tape. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो उसको किस चीज से मेजर करेंगे? रूलर या फिर मेजरिंग टेप. अंडरस्टूड? नो नीड टू फॉरगेट. अंडरलाइन दिस लाइन. Underline. If objects are straight, then measures them by ruler or tape. I'll ask this question in the exam. Okay. Now come to second point. If objects are curved, then the object having the maximum curve is the longest, and object having the minimum curve is the shortest. Underline this line also. If objects are curved, then the object having the maximum curve is the longest, and object having the minimum curve is the shortest. Look, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होगा तो आप उसको किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हो? टेप या फिर रूलर की हेल्प से. ओके, बट अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्स में होंगे, तो आप उसको किससे मेजर करोगे? जिस भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा कर्व्स होंगे, इट मींस वो हमारे उसकी लेंथ ज्यादा होगी, एंड जिसमें हमारे कर्व्स कम होंगे वो हमारी लेंथ कैसी होगी? कम होगी. ओके, सो ये तो लेंथ की बात हो गई. नाउ व्हाट इज वेट? हाउ टू कंपेयर द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट? अब आप ऑब्जेक्ट के वेट को कैसे कंपेयर करोगे? Look, use weighing scale to identify the weight of object and category them from the lightest to the heaviest or the heaviest to the lightest. Okay. अब एक बात बताइए बेटा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वेट करने जाते हो तो आप किसकी हेल्प से वेट करते हो? वेइंग ऑब्जेक्ट, वेइंग मशीन होती है. आप क्या करते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को वन साइड प्लेस करते हो और सेकंड ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड प्लेस करते हो. जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हैवी होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, एंड लाइटर वाला ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रहेगा. यस, ओके, समझ आया? इट मींस जो हैवी था वो नीचे आ गया. इट मींस जो नीचे आ गया है वो ऑब्जेक्ट हैवी है, एंड जो ऊपर फ्लोट हो रहा है वो लाइट है. अंडरस्टूड? ओके. Underline this line. Use weighing scale. Underline this line. Use weighing scale to identify the weight of object. I'll ask this in the question in the test. Okay. Now come to money. 1 rupees is equal to 100 पैसा. 1 rupees में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. Understood? Underline this also. This money and time is very important. Underline it. 1 rupees is equal to 100 पैसे.
Now come to time. Number of days in a week. Can you tell me that how many number of days there in a week? There are 7 days in a week. Name them. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, how many days? 7 days in a week. Underline it. Now, number of months in a year. Can you tell me that how many months are there in the year? 12. Very good. What are they? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. These all are the 12 months make a 1 year. Okay. Now underline this also. Number of months in a year 12. Now 1 hour is equal to how many minutes? 1 hour is equal to 60 minutes. And 1 minute is equal to how many seconds? 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60. And 1 minute में कितने सेकंड होते हैं? 60. Okay. Underline. Now come to example first. Look, what is the example first? Jimmy has some coin. Jimmy के पास कुछ coins हैं. As shown below. How much total amount he has? Jimmy के पास कुछ कॉइन है जो आपको नीचे पिक्चर शो हो रही है. अब आपको क्या करना है? इन कॉइन को काउंट करना है. स्टार्ट काउंटिंग. लुक हाउ मेनी कॉइन्स डज जिमी हैज. फर्स्ट इज द स्पेसिमेन. ये बेटा आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, आपको कैसे सॉल्व करना है. ये देखिए जितने भी हमें रुपीस दिए गए उसको हम लोग पहले क्या करेंगे? लिख देंगे. ओके, like this. 5. How many coins? 5 plus 2 plus 2 plus 2 again plus 2. अब कौन सा है? plus 1. Now here 1. ये देखिए आपके बेटा ऊपर इतने रुपीस थे, अब कितने हैं नीचे? इतने इजीली लिख दे रही हूँ. ओके, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1. ओके, अब नाउ लुक सही लिखा है. 5 + 2 + 2 + 2 + 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 एंड +1. अब बेटा सपोज करिए आपके पास 5 रुपीस का कॉइन है, 2 रुपीस के आपके पास 4 कॉइन है. ये देखिए 5 आपके पास कितने कॉइन है? 1 कॉइन. ओके, एंड 2 रुपीस के आपके पास कितने कॉइन है? 4 कॉइन. यस और नो? यस. एंड 1 के आपके पास कितने कॉइन है? 8 कॉइन. Yes. Now count them all. अब इनको आप काउंट करिए. 5 + 2 6. Oh sorry 7. 7 + 2 9. 9 + 2 11. 11 + 2 13. 13 + 1 14. 14 + 1 15. 15 + 1 16. 16 +
Okay, understood everyone? How many? 21. It means 21 rupees. Understood? आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझ आया? Now come to example number second. Look, example second. Which is the heaviest amongst square, triangle and diamond? Okay. Here three shapes are given. You have to tell that which one is heaviest. So look at the figures. And first figure. Look. First figure is like this now. This is first figure. Now come to second figure. This is second figure. Come to third figure. Look. अब आपको बताना है कि तीनों फिगर में से सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है जो आपको दिया गया था स्क्वायर ट्रायंगल एंड डायमंड. नाउ लुक हियर इज द टू स्क्वायर एंड फोर सर्कल. यस और नो? यस, एंड दे आर इक्वल. लुक, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सर्कल. टू स्क्वायर इज इक्वल टू, oh sorry, 2 square is equal to 4 circle. मीन्स अगर हम लोग 2 स्क्वायर रखेंगे 4 सर्कल रखेंगे तब दोनों का वेट कैसा होगा? बराबर होगा. ओके, नाउ हियर लुक, 3 सर्कल इज इक्वल टू 1 ट्रायंगल. इट मींस 3 सर्कल एंड 3 सर्कल जब रखेंगे एंड 1 ट्रायंगल का वेट 3 सर्कल के बराबर है. ओके, नाउ कम टू दिस फिगर. हाउ मेनी डायमंड्स? 4 डायमंड्स is equal to 4 सर्कल. जब हम लोग 4 सर्कल एंड 4 डायमंड रखेंगे इट मींस तो दोनों बराबर होंगे. ओके, इट मींस सबसे ज्यादा हैवी कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्क्वायर,
क्वेश्चन है, नो नो नो, क्वेश्चन इज सेइंग टुमारो विल बी संडे। टुमारो क्या होगा? संडे। इट मींस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टुडे एंड देन राइट डाउन यस्टरडे। वेट, आई एम टेलिंग यू द easiest way। जब बेटा आपसे डेज के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इधर लिखोगे, सबसे पहले क्या आता है? यस्टरडे। ओके, यस्टरडे। नाउ आज को क्या बोलते हैं? टुडे। जो चला गया उसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे। जो आज है उसे क्या बोलेंगे? टुडे। एंड जो कल आएगा? टुमारो। ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या करता है। इफ टुमारो विल बी संडे, टुमारो हमारा क्या है? संडे। तो टुमारो के आगे हम क्या लिखेंगे? संडे। एंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देन यस्टरडे वाज, मतलब तो फिर यस्टरडे को क्या था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना हमसे। इट मींस अगर कल संडे तो आज क्या होगा? संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। ओके, तो आज क्या है? सैटरडे। अंडरस्टूड? अब बताइए सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। वेरी गुड। सो यस्टरडे विल बी फ्राइडे। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आया? तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्राइडे। ओके, सबको एग्जाम्पल समझ आए? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस एग्जाम्पल। ओके, then we will start with our exercise. Look at the first question. Which is the longest stick? आप देखिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट में आपको नीचे एक स्केल दिया गया है। यस और नो? लुक, स्केल इज गिवन और नॉट? यस, आपको फ्रॉम 0 टिल 12 सेंटीमीटर का एक स्केल दिया गया है। देन इसके ऊपर आपको स्टिक्स दी गई हैं एंड उस स्टिक का नाम है PQRS। अब आपको बताना है सबसे ज्यादा लंबी स्टिक कौन सी है। नाउ टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट मार्किंग। लुक, लुक बेटा, एस सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? एस। एस कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? हेयर। इट मीन्स कितनी लेंथ है एस की? 9.3। ओके, 9.2 एंड आर की 8.4, क्यू is 10 and P की 9.3। It means सबसे ज़्यादा लॉन्गर स्टिक कौन सी है? Q। ओके, because Q stick lies only 10 सेंटीमीटर। ओके, Q stick हमारी कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। It means what will be the correct answer? D। Tick the D1। D is the correct answer. Now come to question number 2. What question number 2 is saying? How much is the amount shown here? Look at this question. There is some rupees. You have to calculate them. Then you have to tell the total amount. So look at the second one. पहले आप बेटा समझिए फिर आप टिक करिएगा। 20 कितने?
third. Look at the question third. Which toy cost the most? Here the picture of some toys given and price tag is also there. You have to tell that which toy is more expensive. Okay. Look at the P1. जो P कलर की P डॉल है वो बेटा उसकी कॉस्ट क्या है? 18 रुपीज. What is the cost of that P doll? 18 रुपीज. Q डॉल की कितनी है? 19 रुपीज. R 16 रुपीज. S 15 रुपीज. इट मीन सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट किस डॉल का है? Q. It is the cost of 19. It means हमारा सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट किसका है? Q का. It means third B option is correct. Take the B option. Now come to fourth question. Beaker dash contains the most amount of water. Now look, here some beakers are given. Beaker P, beaker Q, beaker R, beaker S. Yes or no? अब आप बेटा देख रहे होगे जो beaker P है वो बहुत ही ज्यादा thin है. Then beaker Q से ज्यादा थोड़ा broad हुआ. R अब थोड़ा सा ज्यादा broad हो गया and जो S है वो और ज्यादा broad है. It means सबसे ज्यादा amount of water किसमें ज्यादा आएगा? P, Q, R और S. सबसे ज्यादा किसमें आएगा? S में. Okay. It means beaker S contains the most amount of water. So option D is correct. Fourth one, option D. Take the option D. Now come to question fifth. Look at the question fifth. Which item is the heaviest? अब आपको बेटा बताना है इसमें से कौन सा आइटम सबसे ज्यादा हैवी है? पेन, स्टेपलर, इरेजर, स्टेपलर, इरेजर, पेन, स्टेपलर, बैग. अब बेटा आप बताइए पेन, इरेजर, स्टेपलर, बैग में से सबसे ज्यादा हैवी कौन सा होता है? यस, स्कूल बैग. सो फिफ्थ वन ऑप्शन डी इज correct. Take the option D. Now look at the board. Today we will do till question number 5 only. Okay. And from question number 6 we will do in the next lecture. Understood? And if you face any kind of problem, simply ask me in the doubt section. Okay, and remember your work should be complete. I'll ask this book for checking also. Understood? Do it fast. Done? Okay, thank you.